सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल, मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲਾਚਾਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਮਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੋਝ ਬਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਛੱਡਤਾ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬੂਰ ਹੈਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਛੇਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕਾ ਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬੂਰ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੜਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਫਨਾ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਯਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਔਰ ਸੈਮਸਮ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਹਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਵਿਕਟਰ ਦਾ ਡੈਡੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ੀ ਦੁਕਾਨ ਸਕੂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੇਟੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਚੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸਟਰ ਮਨੋਰੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤਵੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਤਵਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦ ਬੈਠੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਆਵਰ ਦਿਖਾਈਏ। ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜੰਮਦੂਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਟੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਧਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਹਟ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਨੇ, ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਟ ਤੁਰਿਆ। ਮੈਂ ਭੱਠੀ ਦੀ ਥੋੜਾ ਉਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਡ ਦਾ ਪੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਨਾਹਗਾਰੋਂ ਕੋ ਦੇਨੇ ਸਹਾਰਾ ਆਇਆ ਚਰਨੀ ਮੇਂ ਤਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਗੁਨਾਹਗਾਰੋਂ ਕੋ ਦੇਨੇ ਸਹਾਰਾ ਆਇਆ ਚਰਨੀ ਮੇਂ ਤਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਗੁਨਾਹਗਾਰੋਂ ਕੋ ਦੇਨੇ ਸਹਾਰਾ मैं
सभी आएँ और उनको बुलाएं। संडे स्कूल की क्लास का टाइम भी 10 बजे होता है। अपने बच्चों को संडे स्कूल की क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करें। बुधवार की कॉटेज प्रेयर आपके घर में आयोजित की जा सकती है, आप जब चाहें बता सकते हैं। पिछले हफ्ते का हदिया 5,635 रुपये था। आप जानते हैं क्रिसमस है, आज 24 से कल 25 है। 25 दिसंबर को जो क्रिसमस की वर्शिप सर्विस होगी वो ठीक 11 बजे होगी। कल चर्च में जो वर्शिप होगी 11 बजे होगी। सब आए, सबको औरों को पिलाएं, खुदा से आशीष प्राप्त करें। और कल की इबादत के बाद आपके लिए प्रीति भोज भी होगा। क्रिसमस की मिडनाइट प्रेयर जो हम 24 तारीख रात को करते हैं और वो आज रात को 10:30 बजे प्रारंभ होगी। आप सब आए, खुदा से आशीष पाएं। कल 25 तारीख की शाम को 5:30 बजे यूथ की तरफ से भी क्रिसमस का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, इसलिए आप उसमें शामिल होने के वास्ते भी सब पहुंचे। खुदा से आशीष पाएं। बीते दिनों क्रिसमस के संबंधित प्रोग्रामों में आपने खुशदिली से पार्टिसिपेट किया, उसके लिए आभारी हैं। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। 19 तारीख को शोभा यात्रा थी, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया। खुदा सबको बरकत दे। कैरल सिंगिंग जो गुड शेपर्ड चर्च की मंडली जाती थी, आप सबने अपने घरों में बड़ी खुशदिली से उनका स्वागत किया, मेहमान नवाजी करी और बड़ी आशीष पाई। खुदा सबको आशीष दे। आने वाले दिनों में 26 दिसंबर 2017 को सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च तोगड़ी में क्रिसमस सेलिब्रेशन होगा। उसमें आप सबको उनकी तरफ से न्योता है, इनविटेशन है। स्पेशली क्वायर को भी उनकी तरफ से बुलाया गया है। गुड शेपर्ड चर्च में यूथ की तरफ से 13 जनवरी 2017 को कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये जवानों के लिए है, उसमें शामिल हों। जैसे कि आप जानते हैं, इस दफा पास्टर कमेटी के फैसले के मुताबिक आपके घरों में एल्डर साहिबान कलेक्शन के लिए नहीं आए, लेकिन यही कहा गया था कि जिसने भी क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए अपना डोनेशन देना है वो चर्च के बाहर लगे काउंटर टेबल पर अपना जमा करवाएं। अब तक आपका रिस्पांस बड़ा अच्छा है। खुदा आप सबको आशीषित करे। और भी जो लोग अपना सहयोग क्रिसमस लंच में, क्रिसमस मनाने में डालना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, वे बाहर काउंटर पर, टेबल पर दे सकते हैं। खुदा आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देगा। प्यारे प्रभु, जिंदगी के कर्ता, तमाम बरकतों के सरचश्मे, सभी खुशियों के दाता, धन्यवाद देते प्रभु, आप अपने लोगों को अपनी बरकतों से निवाजते हैं कि वे खुशदिली से खुदावन तेरे दिए हुए में से तेरे पवित्र घर के लिए दान करते हैं। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं उस परिवार के लिए जिन्होंने गुप्त रूप से प्रभु तेरे पवित्र घर के लिए 5 पेडस्टल फैंस, पंखे दान किए हैं। खुदावन ये सब तेरे घर की सहूलियत का सबब बने और इससे तेरे नाम को जलाल मिले। प्रभु उस परिवार को आशीष और बरकत दे, तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए मुकद्दस अंजील का पाठ सुनने के लिए सब खड़े होंगे। लेट अस ऑल राइज टू हियर फ्रॉम द गॉस्पेल। The gospel reading is taken from the Gospel according to Saint Luke, chapter 1, verses 26 to 38. अंजील मुकद्दस का पाठ जो लिया गया है संत लूका की अंजील, उसका 1 अध्याय और उसकी 26 आयत से लेकर 38 आयत के आखिर तक है। सब मेरे पीछे कहें, यीशु मसीह तेरा जलाल हो। यहाँ यूं लिखा, छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत नासरत नामक गलील के नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी, जो दाऊद के वंश का था, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और भीतर आकर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे प्रभु की कृपा पात्री, सलाम, प्रभु तेरे साथ है।
इस कथन को सुनकर वह अत्यंत घबरा गई और सोच में पड़ गई कि ये किस प्रकार का अभिवादन हो सकता है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु और परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और वह याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुंवारी ही हूँ। स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर आच्छादित होगा। इसी कारण वह पवित्र पुरुष पुत्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, तेरी कुटुंबनी एलिशबा से भी इस बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है और ये उसका जो बांझ कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देख, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार ही मेरे साथ हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ये मसीह की अंजील है। ऐ खुदावन यीशु, तेरी तमजीद हो। आमीन। आइए सब अपनी आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएं, दुआ मांगें। प्यारे प्रभु, बहुत ही धन्यवादी हैं आज इस मुबारक समय के लिए जब आपने तुम्हारी इबादत के बायस हमें इकट्ठा किया। भजन गाने के द्वारा आपकी उस्तत, आपकी महिमा करी गई। प्रभु, आपके मुकद्दस कलाम का पाठ भी पढ़ा गया, इस पर आपकी बरकत मांगी है। हमारी रूहानी खुराक हमें इनायत फरमाए। मेरे मुंह के बोल, मेरे दिल के ख्यालात आपकी हजूरी में मकबूल ठहरे, सारी जमात के लिए बरकत का बायस बन जाए। आए खुदावन, मेरी चट्टान, मेरे फिदिया देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मेहरबानी से तशरीफ रखें। आइए बुलंद आवाज से नारा बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुड शेपर्ड चर्च की आज की इबादत में आप सबका स्वागत है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं जिसने हमें ये खूबसूरत समय प्रदान किया कि हम उसकी महिमा, उसकी आराधना करें, उसकी बंदगी में शामिल हों और खुदा के कलाम पर भी गौर करने पाएं। खुदा का वचन हमें किस बात के लिए प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है। आज भी हमने मुकद्दस कलाम से पाठ पढ़े, ज़बूर 89 उसकी चंद आयतें और उसके बाद ज़करिया नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 10 से 13 आयत, फिलिपियों का खत उसका 4 अध्याय 4 से 7 आयत और अंजील मुकद्दस का पाठ था संत लूका की अंजील उसका 1 अध्याय उसकी 26 आयत से 38 आयत के अखीर तक था। और इन अध्यायों को ध्यान में रखते हुए आज हमें जो थीम गौर करने के लिए मिला, दैट इज द लॉर्ड्स कमिंग गिव्स जॉय एंड पीस टू हिज पीपल। आई रिपीट, द लॉर्ड्स कमिंग गिव्स जॉय एंड पीस टू हिज पीपल। इसका अनुवाद यूं हुआ कि प्रभु का आगमन उसके लोगों को आनंद और शांति प्रदान करता है। प्रभु का आगमन उसके लोगों को आनंद और शांति प्रदान करता है। आज हम इसी थीम को लेकर खुदा के कलाम पर गौर करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें किस रीति से खुशी, आनंद और सुकून या तसल्ली या शांति देता है। प्यारे जो हमारी जिंदगी बहुत ही उथल पुथल से बड़ी है, उतार चढ़ाव से बड़ी है, बड़ी है। हर घर में, हर परिवार में, हर फैमिली में, हर इंडिविजुअल व्यक्तिगत जिंदगी में आप कई तरह की दुविधाओं को देखते हैं। किन मुसीबतों से होकर आप सब गुजरते हैं। जब आपके जीवन में मुश्किल का दौर आता है तो शायद खुशी नाम की चीज भूल ही जाती है। शायद आप शांति के बारे में सोच ही नहीं पाते।
लेकिन इन सारे हालातों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन, प्रभु यीशु मसीह का आना हमें उन सारी मुसीबतों से हटकर खुशी, आनंद और शांति प्रदान करता है। मुकद्दस कलाम में बहुत दफा इस बात के लिए कहा गया है। संत पौलुस ने फिलिपियों के खत उसके 4 अध्याय उसकी 4 आयत में कहा है, कहता प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। बहुत दफा मैं इस बात पर विचार करता हूं कि कह देना तो आसान है लेकिन हो पाना कुछ नहीं। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर उसने कहा है आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, तो वो उस आनंद को हमारे हृदयों में देता है। जब हम नहमीया 8 अध्याय उसकी 10 आयत में प्रभु के वचन में देखते हैं तो प्रभु का नबी बड़ी अच्छी बात हमें कहता है। वो क्या कहता है? कहता यहोवा में आनंदित रहना ही तुम्हारा सामर्थ्य है। बहुत से लोग हैं जो संसार की बातों को ध्यान देते हैं। आप किसी बात के लिए, किसी काम को करने के लिए चलते हैं, यू टेक ए स्टेप अहेड, या पे कदम को उठाते हैं कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन उसी वक्त आपके दिलो दिमाग में उस काम को करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें नजर आनी शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी खामियां, कमजोरियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने आती हैं कि ये सब कौन पूरा करेगा। All negative things, the worldly things comes in your mind, सारी नकारात्मक बातें आपके दिलो दिमाग में आ जाती हैं, ये हो नहीं सकता। लेकिन जितना ज्यादा आप संसार की बातों में ध्यान देंगे, जितना ज्यादा आप ऐसी बातों, नकारात्मक बातों पर सोचना में बिताएंगे, उतना ज्यादा आपका निर्णय कमजोर होता चला जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा आप परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैं ये बात करना चाहता हूं, ये काम करना चाहता हूं, लेट मी से, ये मुझे कहने दीजिए, कि प्रभु आपको समर्थ प्रदान करेगा। इसीलिए तो नबी ने कहा है यहोवा में आनंदित रहना ही तुम्हारा सामर्थ्य है। प्रभु में आनंदित रहो, खुशी से प्रभु के सामने अपनी योजनाओं को रखो, क्योंकि खुदा उन योजनाओं को सफलता में तब्दील करने की कुव्वत रखता है। प्रभु के वचन में लिखा है इंसान योजनाएं तो बनाता है लेकिन उनका सफल होना परमेश्वर की ओर से होता है। If you depend upon God, अगर आप खुदा पर निर्भर करेंगे, उससे कहेंगे प्रभु मैं तुझ में आनंदित रहना चाहता हूँ, प्रभु आपकी योजनाओं को सफलता में तब्दील करने के बाइस आपको खुशी प्रदान करेगा, आनंद प्रदान करेगा, क्योंकि उसका आना ही सब जहां के लिए, सब लोगों के लिए खुशी की बात है। प्रभु के वचन में बहुत सारी बातें इसके लिए लिखी गई हैं, कही गई हैं। मैं आज आपके साथ रूबरू होते इसी वचन को शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा इतिहास की किताब उसके 20 अध्याय में एक राजा का जिक्र आता है, उसका नाम है यहोशापात। इस्राएल के बहुत से राजा हुए और उनमें से एक ये है जिसका नाम है यहोशापात। और ये बंदा खुदा का डर मानता है और उसके राहों पर भी चलता है और उसके नियमों का पालन करता है, उसकी विधियों के मुताबिक चलता है। और खुदा भी क्या करता है कि उसका काम जो भी वो करता है उसमें उसे सफल करता है। एक दफा युद्ध हुआ और युद्ध में काफी कठिनाइयां थी, बड़ी दिक्कतों के साथ वो आगे बढ़े, लेकिन वो इस बात को जानता था कि जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि घोड़ा तो युद्ध के लिए तैयार है लेकिन उसका सफलता तो खुदा की ओर से आनी, जीत खुदा देता है, जीत खुदा देता है। उस बात को जानता था, इसलिए उसने खुदा का नाम लेकर अपना युद्ध प्रारंभ किया और उसमें क्या हुआ? फतेह पाई। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। कोई मेरे लिए पढ़े इतिहास, दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसकी 27 आयत में, क्योंकि वहां पर बड़े आनंद की बात करी गई है। क्या लिखा? तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष उनके
उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। क्योंकि यहोवा ने उन्हें उनके दुश्मनों पर, उनके शत्रुओं पर क्या किया था? आनंदित किया। क्योंकि खुदा ने उन्हें पराजित कर दिया और इन्हें विजय प्रदान कर दी। यानी जो इंसान खुदा पर निर्भर रहता है, खुदा उसे आनंदित करता है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो पूर्व दिशा में एक सितारा, स्टार वासी, एक सितारा, अद्भुत सितारा दिखाई दिया। और बहुत से ज्योतिषी होते हैं जो विजडम की बातों को पढ़ते हैं और नक्षत्र ज्ञान भी रखते हैं। और उन्होंने उस तारे को जब देखा और उसके बारे में मुकद्दस किताबों में खोजबीन करी, तो वो कहने लगे ये सितारा तो किसी राजकुमार के जन्म की निशानी है। और वो उस सितारे के पीछे चलने लगे कि हम उसके दर्शन करने के लिए जाएंगे, उसको सिजदा करेंगे। प्यारे जो मत्ती के अंजील 2 अध्याय उसकी 10 आयत इस बात का बयान करती है कि जब वे यरूशलेम में पहुंचे, रुकता हुआ देखकर बहुत से आनंद से भर गए। क्या लिखा? 2 अध्याय उसकी 10 आयत में, मत्ती के अंजील 2 अध्याय उसकी 10 आयत। इसमें कुछ ऐसा अद्भुत दिखाई पड़े जिससे आनंद मिले, तो वो सबको अच्छा लगता है। इट इज प्रभु यीशु मसीह। ये प्रभु यीशु मसीह है जो आपके जीवन को आनंद से भर सकता है, बशर्ते आप उस पर भरोसा रखें, विश्वास करें, उसकी नजदीकी में आए। क्योंकि वो कहता है, हे थके हुए और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। दुनिया की दिक्कतों से, परेशानियों से आराम दूंगा। बहुत दफा हम शोकित होते हैं, कई तरह की परेशानियों से जुझला जाते हैं, और जिसके कारण हमें पता नहीं चलता कि हम क्या करें, किधर जाएं, किसके पास जाएं। प्यारे दोस्तों, लेकिन बाइबल बताती है कि एक है जो कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी भी अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी ना तुम्हें त्यागूंगा, ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। हमेशा उस पर भरोसा रखें। वो प्रभु यीशु मसीह के लफ्ज़ हैं। हम देखें यूहन्ना की इंजील उसके 16 अध्याय और उसकी 20 आयत में भी प्रभु यीशु मसीह कुछ कहते हैं। कहते, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। दुनियावी तौर पर आप जब देखते हैं, आपके जीवन में कठिनाई आती, लोग उसका ठट्ठा उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वो खुश होते हैं। लेकिन प्रभु में रहने वाले लोगों के लिए क्या होता है? कहता, तुम शोकित होगे, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हो, और वो भरोसा रखना ही तुम्हारे लिए तुम्हारे शोक को आनंद में बदल देता है। प्रभु से जुड़े रहे प्यारे। ये आनंद एक अद्भुत आनंद है। मैं इस पर विचार कर रहा था जब, तो खुदा की तरफ से ये विचार मेरे मन में आया कि ये आनंद कैसा आनंद हो सकता है? ये आनंद कैसा आनंद हो सकता है? ये आनंद उस औरत के समान है जो लंबे समय से बांझ है, नाउमीदी की हालत में है, लेकिन अचानक से उसका पीरियड आना बंद हो जाता है, मासिक धर्म बंद हो जाता है, और उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। शी इज प्रेग्नेंट। कितने समय से वो नाउमीदी की में थी, दुख में थी, ये कैसे होगा, बहुत कष्ट मुश्किल है। लेकिन अचानक से जब उसे पता चलता है कि खुदा ने उस पर अनुग्रह कर दिया है, तो वो कितनी खुशी से भर जाती। ये वो आनंद है। बाइबल में इसके एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद कुछ और भी एक एग्जाम्पल दिया गया है, जो यूहन्ना की इंजील उसके 16 अध्याय उसकी 21 आयत में दर्ज है। कहते हैं कि जब किसी स्त्री को प्रसव पीड़ा होती है तो उसे शोक होता है, क्योंकि उसका समय आ पहुंचा है। दर्द होती है,
परंतु जब वह बच्चे को जन्म दे चुकती है तो उस पीड़ा को इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है वह भूल जाती है। यह भी एक आनंद ही बताया गया है जो प्रभु देता है, और वो हमारे दुखों को, कष्टों को, चाहे कितने भी बड़े हो, वो मिटा देता है, वो खुशी प्रदान करता है। हम उस पर बने रहें, उस पर भरोसा रखें, प्यारे जो खुदा आशीषों से बढ़ता चले जाता है। रोमियो का खत उसके 14 अध्याय उसकी 17 आयत में भी एक आनंद के बारे में बात की गई है। वो परमेश्वर के राज्य का आनंद है। वो आनंद कौन सा कहता? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। हम किसी शादी ब्याह या किसी फंक्शन में जाते हैं तो बड़े बड़े पकवान बने होते हैं, उन पकवानों को देखकर हमें बड़ी खुशी महसूस होती है ना, खुश हो जाते हैं, कितने टेस्टी है। जितना ज्यादा टेस्टी होता है उतनी उसकी ज्यादा दुर्गुताएं भी होती हैं, मुश्किलें भी होती हैं। लेकिन कहता परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, कहता लेकिन परंतु धार्मिकता, मेल और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा में है। जो पवित्र आत्मा हमें आनंद प्रदान करता है, ये उस आनंद की बात की गई है। आज हम संसारिक तौर पर नहीं लेकिन रूहानी तौर पर उस आनंद को महसूस करें जो खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिलों में आने के सबब से हमें प्रदान करता है, क्योंकि वो हमारे सोचने के पर्सपेक्टिव को, दृष्टिकोण को बदल देता है। आप चीजों को उस तरीके से देखना छोड़ देते हैं जिस तरीके से संसार देखता है, लेकिन आप उसको खुदायत के नजरिए से, खुदा के नजरिए से देखना प्रारंभ करते हैं। और वो कभी भी खुदायत का, खुदा के नजरिए से जब आप देखते हैं किसी चीज को, तो वो आपको कभी भी दुख नहीं देता, लेकिन आप उसे राइट पर्सपेक्टिव में सोचते हुए, सही दृष्टिकोण से सोचते हुए आनंदित होते चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही हमें आनंद प्रदान करता है। प्यारे जो जबूर 30 उसकी 5 आयत में लिखा, कहता क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है पर उसकी कृपा जीवन भर की होती है। प्रभु का क्रोध तो क्षण भर का होता है, गुस्सा होता है खुदा, ठीक वैसे ही जैसे एक बाप अपने बेटे की गलती पर उसको डांटता है ना। हम डांटते हैं अपने बच्चों को जब वे गलती करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे डांट हमेशा ही डांट बनी रहती है, लेकिन फिर से हम उसे अपने गले से भी लगा लेते हैं। वैसे ही खुदा बाप कहता उसका क्रोध क्षण भर का होता है परंतु उसकी कृपा जीवन भर की होती है। कदाचित कहते रात को दौड़ना पड़े, शायद कहता किसी कारणवश रात को तुम्हें रोना पड़े, परंतु इस बात को याद रखो कि सुबह आनंद से भरी होती है, सुबह आनंद से भरी होती है। प्रभु के आनंद में लगे रहें, प्रभु आपको ताकत और सामर्थ्य से बात देगा। हमने बात की द कमिंग ऑफ द लॉर्ड्स कमिंग गिव्स जॉय एंड पीस टू हिज पीपल। खुदा की आमद, प्रभु यीशु मसीह की आमद अपने लोगों को आनंद और शांति प्रदान। हमने आनंद की बात करी, थोड़ा सा मैं जिक्र शांति के बारे में भी करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, आज जो आपके बीच में ये शख्स रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये मसीह परिवार चैनल जो कि YouTube पर है, वहाँ चलाते हैं। मिस्टर यतन बब्बर इसके ओनर हैं और मिस्टर विनोद भी वहाँ पर काम करते हैं। और जो आज ये रिकॉर्डिंग आपके चर्च की इस इबादत की कर रहे हैं, ये आप कल YouTube पर मसीह परिवार चैनल पर देख सकते हैं। खुदा ने इन्हें ये चैनल बनाने की तौफीक बख्शी, खुदा इन्हें बड़ी आशीष दे, ताकि इस चैनल के जरिए भी ये परमेश्वर का प्रचार, परमेश्वर के कलाम का प्रचार लोग तक करते, उसके राज्य में इजाफे का सबब बनते चले जाए। परमेश्वर इन्हें भी बड़ी आशीष दे। हम बात कर रहे थे खुशी की, ये खुशी की बात है जब ये भी हमारे दरमियान पहुंचे हैं, और खुदा इन्हें भी बड़ी आशीष दे। जब हम शांति की बात करते हैं तो पुराने अहदनामे में बहुत से ऐसे नबी भी थे जो अपने लोगों के लिए नबूवत करते हुए कहते थे शांति शांति शांति, लेकिन खुदा का वचन कहता, चाहे वो कहते थे कि शांति शांति शांति, लेकिन शांति होती